तालियों की गड़गड़ाहट से इस दीपक ज्योति का स्वागत करने का कष्ट करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते परम ज्योति नमस्तुते दीपक ज्योति नमस्तुते। Thank you, sir. Continuously. Yes. Wait. Thank you. Sir, continuously, I request to all honorable guests, please inaugural unveiling ceremony. Please come to the stage, sir. Thank you very much, sir. I request President Thomas, sir, to kindly unveil our kits. So this is the first kit which we are seeing, a formal kit for the retreat of PHDCIL HSCA High Performance Academy, which consists of blazer and trouser. I request him to unveil the sports kit, and I request him to Joshi sir, Joshi ma'am to kindly join for the unveiling. Please continue to give a big applause for this wonderful initiative. These uniforms will become a very sensitive. यस ठीक है सर, इधर देखिए सर। यस स्माइल। एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर थॉमस, डॉक्टर डीके सिंह जो सेक्रेटरी जनरल हैं उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के, डॉक्टर प्रशांत कुशवाहा जो नेशनल कैनोइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, एंड डॉक्टर सुमन कुलश्रेष्ठा CEO इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन। हमने इसका विधिवत उद्घाटन कल अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री RK बिश्नोई साहब के संबोधन के साथ इस एकेडमी का विधिवत उद्घाटन कर। Will be educated in the new academy, will fight with for medals, and that was the reason, because it's a very special project that I'm traveling here to India because I'm getting a lot of invitations from around. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो खेल प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनमें भाग लेने में सक्षम होंगे, और इससे केवल उत्तराखंड में नहीं हमारे देश का नाम भी रोशन होगा, क्योंकि जो एथलीट्स जो मेडल्स जीत के लाएंगे ओलंपिक में या ओलंपियाड। Interesting that I decided you have to go, you have to support, you have to ask how you can help to make this project really to a success. And there was one more reason, because we are as a federation very focused to protect our environment, to deliver clean sport, and that was a perfect partnership with a renewable energy supplier, producer, and such a environmental friendly federation who want to protect the environment, because we need that for our sport, working together. And another aspect was that is interesting and new, that commercial oriented company support sports, social oriented activities.
and so I'm so happy that I decided to come here to join this inauguration, to meet all these people. We have discussed how we can help from international side with expertise, what we can do, for example, to send coaches, experts, to make a great project still better. And I visited a couple of hours ago the hotel or the place where athletes should be accommodated, where they can have training. And I want to describe the building and conditions, and I said, to say good is not enough to describe the conditions. The conditions there are really excellent. And they are absolutely similar to conditions of countries in Europe. Sometimes better, rooms are better equipped. So now you have a very professional, high-performance academy, thanks of THDC company, and I'm sure the support of external coaches, Indian paddlers will improve their performance significantly. जैसे कि मिस्टर थॉमस कह रहे हैं कि देखिए, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया था, और माननीय धामी जी की जो परिकल्पना थी कि इसमें उत्तराखंड के अंदर जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हो, उसी दिन हमने 8 तारीख को शाम को एक MOU साइन किया था, जिसके तहत हम कोटेश्वर जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कियाकिंग एंड कैनोइंग की फील्ड में होगा उसको स्थापित करेंगे। उसका हमने MOU एक जो फॉर्मल MOU है वो साइन किया था 8 तारीख को, जिसमें जो सिग्नेटरीज थे उस MOU के, उसमें THDC, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल कियाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन, और इसमें जो हम लोग इस एकेडमी को स्थापित करेंगे वो इंटरनेशनल कियाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के जो नॉर्म्स होंगे, उनकी जो गाइडलाइंस होंगी, उसके तहत ये एकेडमी बनेगी। और आज हमने कल शाम को इस एकेडमी का हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री R.K. बिश्नोई साहब का जो उनका ही विजन था, और उसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह साहब, जब हमने पहली प्रतियोगिता यहाँ पे करी थी वाटर स्पोर्ट्स में, उन्होंने जो घोषणा की थी, और उस घोषणा के तहत हम लोगों ने इस स्पोर्ट्स को गोद लिया था। और उस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमने जो भी उस दिन माननीय मंत्री जी ने और हमारे CMD साहब ने जो घोषणा की थी कि हम कोटेश्वर क्षेत्र में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर को स्थापित करेंगे, उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास हमारा सार्थक हुआ है। कल हमने इसका जो फॉर्मल उद्घाटन है वो कल शाम को हमारे अध्यक्ष निदेशक और हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कियाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन थे, उनके कर कमलों से ये कल हम शाम को हुआ है। और आज हमने उसका जो विधिवत उसका जो भूमि पूजन है, आप कह सकते हैं कि वो आज कोटेश्वर में किया है, और हम अगले मार्च अप्रैल से वो एकेडमी औपचारिक रूप से वहाँ पर एडमिशन्स स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, तो इसकी क्या भी गाइडलाइंस, इसकी जो भी प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो हम लोग तैयार कर पाएंगे। और जैसे ही ये फॉर्मेट हमारा तैयार होता है, हम इसमें जो आगे जो एडमिशन्स की प्रक्रिया है, इसमें जितने इक्विपमेंट्स खरीदे जाएंगे, जो भी इसमें जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, जो कैनोइंग के जो भी इक्विपमेंट हैं, वो सब हम लोग उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अभी हमारे साथ क्योंकि प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस थे, उन्होंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया, वहाँ पे और भी जो संभावनाएं तलाश की जा सकती थी वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, वो हमने सारे क्षेत्र का भ्रमण किया। और उनका ये कहना था कि ये जो फैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने वहाँ पर क्रिएट किया है इस स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए, वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का है, और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास क्योंकि इतनी बड़ी जो प्राकृतिक जो वरदान है हमारे लिए, जो टिहरी झील है और कोटेश्वर झील है, जिसका कि 45 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, इसमें अपार संभावनाएं हैं वाटर स्पोर्ट्स की। और उन सारी संभावनाओं को हम लोग इंटरनेशनल कियाकिंग एसोसिएशन की मदद से, जो नेशनल फेडरेशन है उसकी मदद से, और जो हमारे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन है उनकी मदद से
हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं और जिसके तहत हमारे एथलीट्स यहाँ पे तैयार होंगे जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं इस क्षेत्र में उसमें भाग ले सकेंगे। और अवश्य ही क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इसमें हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम भी होगा नेशनल कंपनीज के साथ, इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ, इंटरनेशनल सेंटर्स के साथ। तो हमारे जो एथलीट्स यहाँ पे जो पैदा होंगे वो बहुत ही उच्च श्रेणी के, बहुत ही एक्सपर्ट कैटेगरी में होंगे और हम अवश्य ही जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में मेडल हासिल करने में सक्षम होंगे। सर कैसे ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। इसमें वहाँ पर जो हमने हमारी जो मेस है, जो हमारा गेस्ट हाउस है, हमने इसको डेडिकेट किया है। हमारे कुछ वहाँ पे हाउसेज हैं वो हमने उनके कोचेज के लिए निर्धारित किए हैं और जो हमारा एक गेस्ट हाउस है वो हमारे जो एथलीट्स वहाँ पे जो ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। वहाँ पे उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके जिम की व्यवस्था, उनके लिए वहाँ पे ऑडिटोरियम, एक बहुत उच्च श्रेणी का ऑडिटोरियम पहले से हमारा विकसित है। तो उस सारी फैसिलिटीज़ को हम उस एकेडमी को देंगे जिससे कि हम एक बहुत अच्छे स्तर पर एथलीट्स को वहाँ पे ट्रेन कर पाएँ। Let me start at first. Why India is so interesting for International Canoe Federation. Your country is the biggest country in terms of population in the world. It's one of the fast-growing country in terms of economy. And your Prime Minister announced that your country will apply for Olympic Games 36. That's why we have to improve popularity of our sport canoeing, and that's why we support the National Canoe and Kayak Federation in all their projects. And I'm so grateful for support of THDC for this very professional project, because now all the best athletes from your country has really professional conditions, and so it's only a matter of time until athletes from India can compete with on all levels for medals. And congratulations, they did already the first step with winning medals in the Asian Games, contributing to the great success of your country. And now we're all working together to continue with this success, and it would be a great progress for the international canoe family if athletes from India can compete with for Olympic medals, because we can increase in generally our popularity, our viewers. And so that's why it is a joint project between Indian Canoe and Kayak Federation, THDC, and International Federation. And we will contribute, sending coaches, sending experts to help to educate and train Indian athletes still better. थैंक यू। मैं भारतीय कायाकिंग कैनोइंग संघ का अध्यक्ष हूँ। जैसा आप जानते हैं कि THDC द्वारा और IKC द्वारा हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर खोल रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स का। ये वन ऑफ द आर्ट पूरे इंडिया का बेस्ट सेंटर होगा, जिसमें हमारे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट स्पेशली आए हुए हैं, जो इसको जो टेक्निकली चीज़ें हैं या जो हमको बुलाना है, जैसे कोचेज़ आएंगे विदेश के, इंडिया के जो बेस्ट खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। दूसरे नंबर पे जो भी इक्विपमेंट जो ओलंपिक्स में यूज़ होता है वो ओलंपिक का इक्विपमेंट रहेगा। और विशेष तौर से उत्तराखंड के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वैसे हम लोग ऐसा करते नहीं हैं कि खेल में कोटा लाएं, क्योंकि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है या कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन THDC ने विशेष तौर से CMD साहब ने, ED साहब ने, जोशी जी ने, त्रिपाठी जी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए 10% का कोटा रिजर्व कराया है। तो जो हमारा एक क्राइटेरिया बनेगा, अभी हमारी जो कोचेस के पैनल है उसने पूरा एक क्राइटेरिया बना लिया है। जो भी उस क्राइटेरिया को फिल करेगा कि लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, दौड़ इतने देर में लगानी है, 5 मिनट में मूव करना है, जो भी जैसा रहता है, अगर उन क्राइटेरिया पे उत्तराखंड के खिलाड़ी पूर्ति अपनी करेंगे तो उन खिलाड़ी को उसमें भर्ती दी जाएगी। जैसा सर ने कहा है कि पूरा उनका रहना, खाना, उनके कपड़े, एजुकेशन, सारी चीज़ों का ग्लोबली ध्यान रखा जाएगा और सारी चीज़ें THDC द्वारा मुहैया कराई जाएगी। और कोशिश और सोच ये है कि ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में और नेशनल्स में मेडल ले पाएँ, ताकि उनको जॉब्स लग पाएँ। इससे खेलों में बहुत जॉब लगती हैं, जैसे आप सभी जानते हैं, पुलिस में कोटा है, आर्मी में कोटा है, तो जो लोकल लोग हैं उनको नौकरी लग पाए। और हमें ये फ़ायदा है कि हम एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में मेडल ले पाएँ, क्योंकि अभी हमारे पास कहीं भी इंडिया में फॉरेन कोच नहीं है। सर के माध्यम से, THDC के माध्यम से विदेशी कोच हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू।